Hello students, I wish you a warm good morning. Today I will going to discuss about the structure of a internal eyeball. We have already discussed about the external structure of eye and external structure of the eyeball. The eyeball surrounded of the two type of eyelid, outer eyelid and upper eyelid and inner eyelid. That is found outer side of the eyeball, and each eyelid bear with a hair-like structure is called eyelashes. Then we were also discuss about the muscles which controlling of the movement of eyeball, which are found in between the eyeball and eye orbit. There are mainly two type of muscles. First is rectus muscles and second is oblique muscles. The rectus muscles also divided in four type. First is superior rectus, second is inferior rectus, third is external rectus, and fourth is lateral rectus. Then the inferior, superior, external and lateral rectus, other than the muscles, the oblique muscles also divided into two parts. First is superior oblique and second is inferior oblique. So there are six type of muscles controlling of the movement of eyeball in the eye orbit. According to movement of the muscles, the eyeball move up and down side and right and left side and outer and inner side of the in the eye orbit. When the eye muscles dissimilar found in the eye orbit, then the eyeball slightly squint in position and develop a special type of defect that is called stress biasmus defect. तो बच्चों, हम ये स्ट्रक्चर पहले कर चुके हैं, इसके ऊपर डिस्कस कर लिया है हमने. आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं. यहाँ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई complete eyeball surrounded by three type of layer. First layer is a sclerotic layer, also known as a fibrous layer. Then second, lower the fibrous layer known as a choroid layer. Choroid layer also known as a vascular tunic. Then most inner layer of the eyeball, that is called retina. Retina is a most sensitive layer. They are formed by the two type of photoreceptor like rod and cone, and other type of neuron also found in that type of layer. That is a very very important structure. हम बच्चों वन बाई वन इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर करेंगे. यहाँ यहीं इसी आई के अंदर फ्रंट साइड ऑफ द आई बॉल which is form a transparent layer that is called cornea. Cornea is a part of the sclerotic layer or fibrous tunic, but it is a transparent and non-vascular layer. It is very very important layer. तो बच्चों इस चीज को हम यहाँ पर आज समझने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं. और आई एक ऐसी स्ट्रक्चर है, आई बॉल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो हमारे मैक्सिमम सेंसेस जो है हम कह सकते हैं अपनी बॉडी के जो टोटल सेंसेस है उसका 50% ऑफ सेंसेस फाउंड इन द आई बॉल, इन द कॉर्निया, इन द रेटिना, इन द अदर पार्ट ऑफ द आई बॉल. तो ये सब स्ट्रक्चर बच्चों हम यहाँ पर करेंगे. तो आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से एक इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है. यहाँ तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल, the wall of the remaining eyeball has three layers. Mainly, how many layers found in the eyeball? What is the layer? तो आंसर आएगा there are three type of layer surrounding of the eyeball. एक जनरल हम आई बॉल को हम निकाल ले बच्चों. ये बॉल ले ली हमने यहाँ पर, ये एक बॉल ली, बॉल मीनिंग यहाँ पर आई बॉल ली. ये एक बॉल ली है, सामने से अपन इस प्रकार देख सकते हैं. और उसका ट्रांसफर सेक्शन अपन ले यहाँ पर, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई हम दिखाई देंगे.
तो हमें इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को यहाँ समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है यहाँ। तो ये एक ट्रांसफर सेक्शन लिया, बीच में से आई बिल्कुल होलो पार्ट है ये बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट इज होलो रीजन ऑफ द आई। तो एकदम में ये होलो रीजन है यहाँ। इस आई में यहाँ पर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहाँ आउटर लेयर नोन एज द स्क्लेरा, then second layer that is called choroid, and the third layer that is called retina। NCERT का ये डायग्राम है यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बता सकते हैं कि स्क्लेरा also known as fibrous layer, then the choroid that is also known as a vascular layer, vascular tunic, and retina also known as neurosensory layer। There are three type of layer found surrounding of the eyeball। That type of layer modified into another type of structure in the front of the eye। The scleral layer in the front of eye form a transparent structure that is called cornea। The cornea and sclera both are same layer, but the sclera is a opaque layer, non-transparent layer, but the cornea is a transparent layer which is found in the front of the eye and which is also surrounded by a layer, this is called the conjunctiva। इस प्रकार की एक और लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, then that is called conjunctiva। तो ये बच्चों यहाँ पर समझे होंगे यहाँ पर। Then next part of the eye, the choroid layer or sclera layer connect with each other, that is form a junction type structure, that is form a special junction type structure in between the sclera and choroid near the ciliary body, that is called limbus। And the below the choroid found another type of layer which is a vascular layer and has many type of pigment in the front of the eye below the cornea. The structure of the choroid convert into another type of structure like ciliary body and iris। So that is a lobe-like structure is called ciliary body। That part is known as the ciliary body, and the ciliary body extend into a movable structure below the cornea that is called iris। There are two type of iris, upper side of the iris and inner side of the iris। The upper iris, and we can say that upper iris and lower iris। Below the iris and near the ciliary body, a special fiber which are found in between the ciliary body and the lens, that is called zonula of Jin, and the sensory fiber। And the sensory fiber and zonula of Jin in between both iris, both ciliary body found a transparent movable structure, changeable structure, that is called lens। It is very important structure। The lens and cornea, in between the lens and cornea have a chamber-like structure that is called aqueous chamber, and another type of chamber found in between the lens and retina, that is called vitreous chamber। तो ये बच्चों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ हम समझ सकते हैं इस प्रकार से कि कैसे एक आई की स्ट्रक्चर होती है। ओके बच्चों, यहाँ पर ये बात समझ में आई। इसको थोड़ा सा और आगे हम एलोबरेट करें यहाँ। देन एक बहुत ही सुंदर डायग्राम आपके सामने लिया गया है, एक बड़ा आई का यहाँ डायग्राम लिया गया है। इसको और यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर हम इसकी देखें तो इस बात को हमें इस डायग्राम की द्वारा समझ सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पर मैंने कहा कि कंप्लीट आई फिर देखते हैं कि यहाँ थ्री स्ट्रक्चर यहाँ पर आई की जो थ्री लेयर यहाँ पर आई है, आई की प्रेजेंट है, और उसका मॉडिफिकेशन को यहाँ एम्फेसिस किया है। तो आप देखिएगा ये बच्चों यहाँ पर रेटिना प्रेजेंट है यहाँ पर, और देन यहाँ इसमें ब्लड वेसल्स भी दिखाई दे रही है, इसको अपन कहेंगे रेटिनल ब्लड वेसल्स कहेंगे। और ये लेंस है यहाँ पर देखिएगा, ये लेंस यहाँ पर प्रेजेंट है। देन आउटर साइड ऑफ द ये लेयर है, इसको हम कहेंगे कॉर्निया, और ये यहाँ पर बच्चों आइरिस प्रेजेंट है।
और यहां पर देखिएगा ये एंटीरियर चैम्बर रीजन बिटवीन दी कॉर्निया एंड आइरिस। तो कॉर्निया और आइरिस का मीनिंग ये कॉर्निया है और इस आइरिस के बीच में एक चैम्बर बच्चों प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे एंटीरियर चैम्बर, जो एक्वस चैम्बर का एक पार्ट है। और यहाँ आइरिस और लेंस के बीच में एक चैम्बर है, इस चैम्बर को हम कहेंगे यहाँ पर पोस्टीरियर चैम्बर रीजन बिहाइंड दी आइरिस। एक चैम्बर है यहाँ पर एंटीरियर दी आइरिस, एक बिहाइंड दी आइरिस यहाँ पर। देन नीचे की तरफ यहाँ पर सीलियरी बॉडी और सीलियरी मसल्स प्रेजेंट है और आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्निया, इसको हम कहेंगे यहाँ पर कंजक्टिवा। तो इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर यहाँ बच्चों बनी, आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ इसको हम थोड़ा सा और इसे समझाने का प्रयास करें यहाँ थोड़ी अपने हिसाब से, तब देखिएगा हम आई की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो बच्चों देखिएगा एक बहुत ही सिंपल एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकते हैं कि ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाई, तो ये एक आई की यहाँ पर स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन सकती है। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर किस प्रकार से क्या क्या संरचनाएं यहाँ पाई जाती है, तो देखिएगा यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इस एरिया को हम यहाँ पर बना ले, यहाँ अलग कर ले। यहाँ ये बात आपके यहाँ समझ में आ गई है। यहाँ ये एरिया सामने का यहाँ पर एरिया है, बिल्कुल इस प्रकार से ये एक एरिया यहाँ पर बना सकते हैं। और ये यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर लेंस का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है, ये इसको हम इस प्रकार से लेंस बना सकते हैं। देन सेकेंड जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे आई के, आप देखिएगा इस प्रकार से यहाँ इस प्रकार से सेकंड जो लेयर है वो अपन बना सकते हैं। ये सेकंड लेयर ऑफ द आई हो गई। देन सेकंड लेयर ऑफ द आई यहां क्या बना रही है, आप देखिएगा ये सेकंड लेयर ऑफ द आई, इसको थोड़ा सा मैं आगे यहां पर बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं इस लाइन को, ये इसको कवर किए हुए लेंस को कवर किए हुए स्ट्रक्चर है ये, और ये इस प्रकार से वापिस मूव कर जाती है। देन थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द आई, तो यहां थर्ड लेयर जो बन रही है वो किस प्रकार की यहां बनती है, तो इस लेयर को मैं इस प्रकार से यहां पर बनाऊंगा। ये यहां एक लेयर यहां बनती है और ये लेयर यहां पर कवर रहती है। आगे इस प्रकार से ये लेयर यहां पर कवर रहती है। तो ये बच्चों हमने समझने के लिए तीन लेयर आपके सामने यहां पर बनाई। देयर आर थ्री टाइप ऑफ लेयर फाउंड और सराउंड टू द आई बॉल। थ्री टाइप की लेयर को हम क्या कहेंगे यहाँ, फर्स्ट लेयर इज स्केलेटोइक लेयर, स्क्लेरा और स्क्लेरोटिक लेयर, इट इज ए आउटर लेयर and non-vascular layer. The front of the eye, the sclerotic layer is converted into the cornea. तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर कॉर्निया में ये बच्चों कन्वर्ट हो गई है। ये सामने का जो पार्ट है ये सामने का पार्ट है, ये यहाँ पर कॉर्निया में बदल गया है, कॉर्निया में चेंज हो गया है। यहाँ ये ध्यान रखिए, यहाँ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्निया की सराउंडिंग देखिएगा, यहाँ पर ये कॉर्निया के सराउंडिंग है, इस प्रकार से एक और लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ इसको हम कहते हैं कंजक्टिवा, दैट इज कॉल्ड कंजक्टिवा। एक एक स्ट्रक्चर को बच्चों यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर आपको यहाँ पर स्टडी करनी है, तो आप देखिएगा इसे हम क्या कहेंगे, कंजक्टिवा। ये आपकी कॉर्निया, कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट लेयर, cornea is a transparent layer but is a part of the sclerotic layer. स्क्लेरोटिक लेयर के नीचे यहां पर सेकंड जो लेयर है इसको हम कहेंगे कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर, यहां ध्यान रखिएगा स्क्लेरोटिक लेयर को हम फाइब्रस ट्यूनिक के नाम से भी जानते हैं, फाइब्रस, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस ट्यूनिक। एंड कोरोइड लेयर आल्सो नोन एज ए वेस्कुलर ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक, ट्यूनिक का मीनिंग लेयर है यहाँ। एंड थर्ड लेयर है, इस लेयर को हम कहेंगे यहाँ पर रेटिना,
थर्ड लेयर है, इसको हम कहेंगे रेटिना, और रेटिना न्यूरोमस्कुलर है, न्यूरो सेंसरी लेयर, न्यूरो सेंसरी लेयर है, वो कौन सी है, यहां पर रेटिना है। ये इतनी बात आपके यहां पर समझ में आ गई कि 3 लेयर है, यहां पर स्क्लेरोटिक लेयर है, कोरोइड लेयर है, रेटिना है। फ्रंट साइड के अंदर यहां पर है प्रेजेंट है कौन सी लेयर, फ्रंट साइड में यहां प्रेजेंट है कोरोइड लेयर है, और ये सराउंडेड है किसी कॉर्निया से सराउंडेड है, और इसके साइड यहां पर सराउंडिंग एक और ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसको हम कहेंगे यहां पर कंजक्टिवा। तो बच्चों यहां पर कंजक्टिवा बनी, कॉर्निया बनी। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहां बन रहा है, कॉर्निया और इसके नीचे जो स्क्लेरोटिक लेयर है, ये एक यहां कनेक्शन रहता है इस प्रकार का यहां पर एक कनेक्शन रहता है, जॉइंट रहता है। इस कनेक्शन को हम कहते हैं लिम्बस, दैट इज कॉल्ड लिम्बस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहां ये लिम्बस बना, देखिएगा यहां क्या फॉर्मेशन हुआ, लिम्बस का फॉर्मेशन हुआ। देन बिलो दी लिम्बस, बिलो दी कॉर्निया, अब यहां मॉडिफिकेशन ऑफ दी सेकंड लेयर है, कोरोइड लेयर का बच्चों यहां पर मॉडिफिकेशन है। देखिए ये जो कोरोइड लेयर का मॉडिफिकेशन, ये सराउंडिंग जो कोरोइड लेयर है ये पिगमेंटेड लेयर है, और साथ में यहां पर वेस्कुलर लेयर है, यहाँ इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है, जबकि स्क्लेरोटिक लेयर है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स है वो अब्सेंट है, ब्लड वेसल यहाँ पर नहीं है। और ये न्यूट्रिशन किससे ले रही है, कोरोइड से न्यूट्रिशन ले रही है। तो ब्लड वेसल से नहीं है तो इसको न्यूट्रिशन कौन देगा, ब्लड कहां से आएगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कोरोइड लेयर है, स्क्लेरोटिक को भी न्यूट्रिशन दे रही है, और कोरोइड लेयर है यहाँ पर रेटिना को भी न्यूट्रिशन दे रही है, यहाँ रेटिना को यहाँ प्रोवाइड करवा रही है न्यूट्रिशन। ये बात यहां समझ में आई। अब देखिए आगे चले हम यहां 1 by 1 स्ट्रक्चर हम यहां पर करते जाएंगे। कोरोइड लेयर फ्रंट ऑफ द आई यहां, और बिलो द कॉर्निया 2 स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। एक स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर रही है, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म कर रही है। इस स्ट्रक्चर को यहां पर कहेंगे सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी के नाम से जानते हैं। एंड यहां एक स्ट्रक्चर और बन रही है, इसको हम कहेंगे यहां पर आइरिस। इस स्ट्रक्चर को आइरिस कहते हैं। दोनों आइरिस के बीच में जो प्लेस होता है, इस प्लेस को हम कहेंगे प्यूपिल। दोनों आइरिस के बीच में प्लेस है, इसको प्यूपिल कहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये एक कोई भी आई बॉल है, इस आई बॉल को हम बाहर निकाल ले, उसका ट्रांसफर इस प्रकार से सेक्शन लेंगे तब इस प्रकार की स्ट्रक्चर अंदर से दिखाई देगी। जैसे कोई बॉल ले ली हमने, इस बॉल को इस प्रकार से काट लिया और उसके अंदर क्या क्या दिखाई देता है वो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। मान लो हमें एप्पल ले ली, एप्पल को यहां से कट कर लिया, कट करने के बाद में उसके अंदर से किस प्रकार की स्ट्रक्चर है वो अपन स्टडी करें तो वो यहां ये स्टडी हम कर सकते हैं। यहाँ तो मेरी बात आप समझ गए होंगे यहाँ कि किस प्रकार से हम आईबॉल की स्ट्रक्चर की स्टडी हम कर रहे हैं यहाँ। देन आगे देखिए एक जनरल स्ट्रक्चर आप पढ़े, ये यहाँ पर है आइरिस है, ये सिलियरी बॉडी है, ये बीच में जो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे लेंस। लेंस यहाँ पर कनेक्ट रहता है कुछ फाइबर से, यहाँ कुछ फाइबर है, इन फाइबर को कहेंगे जोनुला ऑफ जिन, और इसी का नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट दैट इज कॉल्ड also known as the suspensory ligament. The suspensory ligament connect to the lens at one side and another side connect to the ciliary body. तो यहाँ ये सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलियरी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ शेप ऑफ द लेंस है वो चेंज होता है। सामान्य जो लेंस है वो यहाँ पर बाई कॉन्वेक्स रहता है, लेकिन फ्लैट भी हो जाता है और बाई कॉन्वेक्स भी यहाँ पर हो जाता है। ये तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है यहाँ। अब आप देखिएगा ये लेंस है, ये कॉर्निया है, लेंस और कॉर्निया के बीच में कुछ चैम्बर पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे चैम्बर का नाम दे दिया गया है यहाँ पर एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर which is found in between the cornea and lens, and in between a special structure also present that is called iris. The iris divided into two chamber of the aqueous chamber. The anterior side of the iris
found a chamber in between the cornea and iris that is called the anterior chamber, and the posterior side of the iris found a chamber in between the iris and the lens that is called posterior chamber. So there are two type of chamber. First is anterior chamber and second is posterior chamber, which is found in between the cornea and lens. Then second type of chamber is called vitreous chamber. Vitreous chamber. The vitreous chamber filled by a jelly-like fluid that is called a vitreous fluid. Vitreous fluid, that is a jelly-like fluid which is formed in a one time in the life cycle or lifespan, which is only formed in the embryonic stage. ये ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है, पूरा का पूरा फ्लूइड है, विट्रियस फ्लूइड है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है यहाँ पर, इसके बाद में ये नहीं बनता है, और ये अंदर का ओकुलर जो प्रेशर है, इसको इंट्रा ओकुलर प्रेशर है, इसको मेंटेन रखने में ये हेल्पफुल है यहाँ। इसके अलावा हम और स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो आप देखिएगा जो आइरिस और सीजरी बॉडी का जो कनेक्शन है, यहाँ पर कुछ केनाल प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड केनाल ऑफ स्लीम। Canal of Schlemm. Canal of Schlemm found in the iris and ciliary. What is the function of the canal of Schlemm? So, what do you mean about the canal of Schlemm? The canal of Schlemm, the release, the secret of the nutrient and other type of minerals and water into the aqueous chamber, as well as the metabolic wastage are received from the aqueous chamber. So the waste metabolic product drain into the exit the aqueous chamber by the help of the Schlemm canal or canal of Schlemm. When the canal of the Schlemm are blocked, then the intraocular pressure will be higher and the retina can be damaged when the canal of Schlemm are blocked, and a defect, a dangerous defect will be developed, that is called glaucoma. एक डिफेक्ट डेवलप हो जाता है बच्चों, इसे हम कहेंगे ग्लूकोमा। ग्लूकोमा डिफेक्ट विल बी डेवलप। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर यहां पर पढ़ सकते हैं। यहां देखिएगा ए बंडल ऑफ द नर्व यहां पर है, निकल रही है बाहर की साइड में, एक बंडल ऑफ द नर्व है। इस नर्व को हम यहां पर न्यूरॉन यहां पर निकलते हैं, कलेक्टिवली दैट टाइप ऑफ न्यूरॉन नोन एज द ऑप्टिक न्यूरॉन, ऑप्टिक नर्व है। इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑप्टिक नर्व कहेंगे यहाँ। तो ये एक और स्पेशली यहाँ पर स्ट्रक्चर है, यहाँ बनती है ऑप्टिक न्यूरॉन की। और यहाँ आप देखिएगा जो रेटिना पार्ट है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर कहते हैं फोविया। फोविया के नाम से जानते हैं। फोविया एक ऐसा पार्ट है बच्चों, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन का काम करती है। फोविया इमेज जो फॉर्म होती है वो कहाँ होती है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन है वो यहाँ इनसाइड ऑफ द फोविया, फोविया यहाँ पर होता है। फोविया एक ऐसा पार्ट है जहां पर ओनली कॉन टाइप के सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, और जहां ऑप्टिक जो नर्व ओरिजिन हो रही है वहां पर एक स्पॉट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट का मीनिंग यहाँ पर है फोटो रिसेप्टर है। एनी टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है। बट फोविया जो प्लेस है, यहाँ इस एरिया को हम यहाँ पर कहेंगे येलो स्पॉट। येलो स्पॉट, येलो स्पॉट है जो ओनली कॉन, यहाँ ध्यान रखिएगा, कॉन टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर फाउंड इन दी फोविया, ओनली कॉन फाउंड इन दी फोविया, बट the both type of photoreceptor like cone and rod are completely absent in the at place of the blind spot। तो ये इसकी डिटेल हम यहाँ बच्चों 1 by 1 करेंगे। यहाँ एक जनरली स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल आपको समझाने का प्रयास किया, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ बच्चों कॉर्निया, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी।
कैसे यहाँ पर कॉर्निया इंपॉर्टेंट है? कॉर्निया इट इज ए नॉन वेस्कुलर पार्ट, the inside of the cornea any type of blood vessels are absent, so cornea easily transplant in another type of person from the donor due to absent of any type of blood vessels. ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई भी ब्लड वेसल्स कॉर्निया के अंदर नहीं है, इसलिए हम आसानी से इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बच्चों, दूसरे पर्सन को दे सकते हैं कॉर्निया। कई बार ऐसा हम कहते हैं कि आई बॉल आई ट्रांसप्लांट कर रही है, किसी की आई खराब हो गई, तो आप देखिएगा बच्चों की पूरी आई कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं की जा सकती, उसके कुछ पार्ट ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। और मेनी ईयर एगो से यहाँ पर जो इसका मेन पार्ट है, तो कॉर्निया पार्ट है, जो हमारे अंदर खराब हो जाए और उसमें किसी प्रकार की सलवटें आ जाए और ओपेक कंडीशन आ जाए, जिसमें रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो और लाइट की इंटेंसिटी भी यहाँ पर न हो पाए, ऐसे केस में इमेज नहीं बनती हमारे अंदर। तो ऐसे केस में कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करने का डॉक्टर सजेस्ट करता है। आप भी करोगे आने वाले समय में, जब कुछ समय के बाद में आपकी मेडिकल की डिग्री पूरी हो जाएगी, तो इस प्रकार के पेशेंट आपके पास भी आएंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉर्निया की, कॉर्निया का ये क्वेश्चन आता है कि आई का विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द आई कैन इजीली ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉर्निया है वो वेरी इजी है, हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। व्हाट इज द कोज? तो आप आंसर दोगे यहाँ ड्यू टू absence ऑफ द ब्लड वेसल्स इन दैट पार्ट। तो ब्लड वेसल्स यहाँ पर बच्चों नहीं होती, और नए होने का यहाँ पर फायदा क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या मिलता है हमारे को बेनिफिट बच्चों यहाँ पर ये मिलता है कि ब्लड वेसल्स है वो उसके अंदर ब्लड होता है। ब्लड क्या करता है, जैसे किसी फॉरेन पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा तो एंटीबॉडी बना लेता है उसके अगेंस्ट में, और वो एंटीबॉडी क्या कर रही है, उसको यहाँ ट्रांसप्लांटेशन है या किसी ऑर्गन को वो एक्सेप्ट नहीं करने देती, रिजेक्शन कर देती है ऑर्गन को। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बट यहाँ इसके अंदर ब्लड वेसल्स है ही नहीं, तो इसलिए एंटीबॉडी बनेगी नहीं, और एंटीबॉडी बनेगी नहीं तो आसानी से हम यहाँ ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये इसका यहाँ पर कॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ एक पार्ट है। ब्लड वेसल्स कंप्लीटली एब्सेंट इन द कॉर्निया, बट द पेन रिसेप्टर एंड टच रिसेप्टर बोथ आर फाउंड इन द कॉर्निया एंड हायर इन नंबर देन द फोटो रिसेप्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 का ये क्वेश्चन है और टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये जो नीट 2019 था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर टच रिसेप्टर और जो पेन रिसेप्टर है वो हायर किस में होते हैं यहाँ, तो आपका आंसर होगा कॉर्निया में टच रिसेप्टर और पेन रिसेप्टर है वो हायर इन नंबर होते हैं, बट रेटिना जो है उसके अंदर यहाँ पर फोटो रिसेप्टर होते हैं। तो इसका मीनिंग है आई के अंदर फोटो रिसेप्टर भी है, टच रिसेप्टर भी है यहाँ पर, और पेन रिसेप्टर भी है। इसीलिए हम बच्चों आई के अंदर ये रिसेप्टर होने के कारण जैसे कोई डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल यहाँ आई की साइड में जाता है तो तुरंत क्या है, अपनी पलक को, अपनी लीड को या बंद करके उसे प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक कॉर्निया के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। कॉर्निया यहाँ पर आप देखिएगा बच्चों ऐसा पार्ट है जो डायरेक्ट है, वो ऑक्सीजन इनटेक फ्रॉम एनवायरमेंट है, तो वहां से ले सकता है डायरेक्ट। तो यहाँ कॉर्निया को न्यूट्रिशन कौन देता है, तो एक्वस ह्यूमर जो है वो यहाँ कॉर्निया को न्यूट्रिशन देते हैं। और बट इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि ये ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से यहाँ पर अब्जॉर्ब कर सकता है कॉर्निया, और उस ऑक्सीजन से इसको सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। तो ये सब बातें हम यहाँ पर आज एक डिटेल करेंगे यहाँ। तो यहाँ तक कि बच्चों आप समझ गए होंगे किस प्रकार से एक जनरली एक आई बॉल की स्ट्रक्चर होती है, और इस टाइप से कैसे क्वेश्चन यहाँ से आपसे एग्जामिनर कैन बी फ्रेम इन द एग्जामिनेशन तो कर सकता है या। तो इसके बाद में हम यहाँ 1 by 1 स्लाइड टू स्लाइड हम बात करें यहाँ, तो देखिएगा एक आई की जनरल स्ट्रक्चर करने के बाद में हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द आई कोट और आई एनवेलप यहाँ पर करें।
क्या क्लासिफिकेशन है यहाँ? तो आई कोट या कोट ऑफ आई ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ लेयर. फर्स्ट इज ए कंप्लीट लेयर, कंप्लीट कोट है. देन सेकंड इज ए इनकम्प्लीट कोट है. द कंप्लीट कोट मीनिंग यहाँ पर कंप्लीटली सराउंडिंग ऑफ द आई बॉल है, या दैट इज कॉल्ड कंप्लीट कोट. द कंप्लीट कोट is a outermost coat which is formed by the fibrous, so called the fibrous coat. The fibrous coat divided into two portions. First is a cornea. Cornea is a transplant part, and the sclera, remaining part of the fibrous coat, is called sclera. The sclera present behind the cornea and inside of the eye orbit. तो व्हाइट पार्ट है, हम कह सकते हैं व्हाइट सफेद, जो व्हाइट पार्ट है सफेद, सफेद फॉर स्क्लेरा और सफेद फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द व्हाइट कोट. देन द ट्यूनिक वेस्कुलसा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द ट्यूनिक वेस्कुलसा फाउंड बिहाइंड द स्क्लेरा एंड हैज a higher amount of the blood vessels and pigment that is also modified into three type of structure. First is a choroid structure, then second is a ciliary body structure, then third is a iris structure. Third is a iris structure. The tunica vasculosa and the retina both are the part of the incomplete coat. Incomplete coat meaning यहाँ पर that is also form modified into another type of structure, so called incomplete coat. That is does not surrounding of the complete eye. So due to the tunica vasculosa also modified into the three type of structure. First is a choroid structure, second is a ciliary body, and third is a iris. ओके बच्चों, ये बात आप समझ चुके हैं यहाँ पर. देन सेकेंड टाइप ऑफ इनकम्प्लीट कोट इज कॉल्ड रेटिना. रेटिना आपको बच्चों पता है कि फ्रंट ऑफ द आई रेटिना प्रेजेंट नहीं होता. रेटिना स्टार्ट फ्रॉम द जोनुला ऑफ द जिन. इट इज ए इनर मोस्ट लेयर. इट इज ए मोस्ट सेंसिटिव लेयर टू द लाइट ड्यू टू इट हैव two type of photoreceptor. It's called rod cell and cone cell. That is a modified nerve cell, a modified that also connect by the modified nerve cell that is called bipolar cell and multipolar cell and ganglionic cell. तो ये हम यहाँ पर डिटेल करेंगे यहाँ बच्चों. तो बात यहाँ तक समझ में आई. क्लासिफिकेशन आपकी यहाँ पर समझ में आया कि कंप्लीट आई बॉल है उसको किस प्रकार से हमें डिवाइड कर सकते हैं. तो ये एक यहाँ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यहाँ बनता है. देन वन बाय वन यहाँ पर करें. फर्स्ट इज द फाइब्रस ट्यूनिक. फाइब्रस ट्यूनिक मीनिंग यहाँ पर देयर इज ए टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन द फाइब्रस ट्यूनिक. इट इज ए आउटर मोस्ट लेयर. फर्स्ट इज यहाँ हम कहेंगे कॉर्निया. कॉर्निया इज ए फाइब्रस ट्यूनिक एंड also second type of a layer that is called sclera. Sclera is a fibrous tunic. इसकी डिटेल हम करें यहाँ कि फाइब्रस ट्यूनिक बच्चों क्या होता है, किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है. वन बाई वन स्ट्रक्चर यहाँ देखें तो फाइब्रस ट्यूनिक इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई बॉल. इट इज मेड अप ऑफ हार्ड एंड थिक कनेक्टिव टिश्यू. तो यहां पर जो व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है इसको यहां पर फॉर्म करते हैं. द लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में इस लेयर को हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज कॉर्निया. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर. इट इज द आउटर विजिबल पार्ट ऑफ द फाइब्रस ट्यूनिक एंड कवर्ड बाय ए स्ट्रक्चर विच टाइप ऑफ एपिथेलियम फाउंड इन द कॉर्निया. That is a non-keratinized squamous epithelium is found in the cornea. It is very very important question. मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया जा सकता है कि which type of epithelium found in the cornea. तो आपका आंसर होगा यहाँ पर non-keratinized squamous epithelium found in the cornea. The cornea is made by non-keratinized squamous epithelium. Then next, the joint between the cornea and sclerotic layer is called limbus or sclerocorneal junction.
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, जॉइंट बिटवीन कॉर्निया और स्क्लेरोटिक लेयर। यहां आप देखिएगा हमने ये क्या बनाया, ये यहाँ पर कॉर्निया बनाया है यहाँ पर। अब ये कॉर्निया आगे चल के क्या बनाया, यहाँ कॉर्निया यहाँ फिनिश हो गया। इसके बाद में ये जो लेयर बन रही है, ये जो लेयर बन रही है, ये लेयर, तो यहाँ ये जॉइंट है, इस जॉइंट को हम क्या कहेंगे, अभी आपको बताया था लिम्बस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ये जॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे, लिम्बस कहेंगे। लिम्बस एक जॉइंट है, इसके आगे का पार्ट कॉर्निया, पीछे का पार्ट है यहाँ पर बैक पार्ट है, इसको स्क्लेरा कहेंगे। तो इसलिए अपन स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन, व्हाट इज द लिम्बस? The limbus is a sclerocorneal junction which is found between a cornea and sclera. It is very important question. That type of question can be framed in the examination by the examiner. तो ये इस प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। Then next is the cornea transplantation is successful because it lack blood vessels and cornea provide maximum refraction to light. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए यहाँ। देन यहाँ एक और अपन देख सकते हैं, कॉर्निया के अंदर मैंने कहा कि विच टाइप ऑफ सेल फाउंड इन द कॉर्निया, द नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस टाइप ऑफ सेल फाउंड इन द कॉर्निया एंड द लेयर ऑफ द कॉर्निया has a special type of gland that is called Bowman gland, or sorry, Bowman membrane. Bowman membrane also found in the cornea. Very important question, ध्यान रखिए। Bowman वर्ड कई जगह है बच्चों। फर्स्ट हमने डाइजेशन रेस्पिरेशन जब स्टडी की थी तो उस समय आया था Bowman gland. Where is the found of the Bowman gland? The Bowman gland found in the nasal chamber of the olfactory epithelium, which is secrete a special type of fluid that is called mucus. इसके बाद में बच्चों एक वर्ड आया था Bowman capsule. The Bowman capsule is a part of the nephron. It is a part of the Malpighian body. The Bowman capsule एंड ग्लोमेरुलस से एक स्ट्रक्चर आपको बताई थी, वहां पर भी उस स्ट्रक्चर को भी बोमेन साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया था। देन थर्ड टाइप ऑफ बोमेन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बोमेन मेम्ब्रेन। द बोमेन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया इसके अंदर ये लेयर प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन कई बार बच्चों फ्रेम किया गया है कि बोमेन लेयर इज सिचुएटेड इन दी, तो आई, एक बार तो ऑप्शन था आई, तो आई के अंदर हो जाएगी। एक बार यहाँ पर एम्स के अंदर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि ये कहाँ होता है, तो उसमें ऑप्शन था कॉर्निया, रेटिना, नोज एंड किडनी। आपका आंसर होता है यहाँ पर कॉर्निया। तो किसी भी इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो बोमेन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन दी आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्निया। तो ये यहाँ बोमेन मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यह एक क्वेश्चन है, कॉर्निया प्रोवाइड द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है। यहाँ याद रखिएगा बच्चों, जैसे कोई कॉर्निया है, इसके ऊपर लाइट आती है, यहाँ ये कॉर्निया में बना रहा हूं, ये कॉर्निया है, इसके ऊपर बाहर से कोई लाइट यहाँ पर आती है, तो इसका मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो है, ध्यान रखिएगा, जैसे इसके टच करेगी तो यहाँ रिफ्रैक्शन जो करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ ये रिफ्रैक्शन करने का काम कौन कर रहा है, तो कॉर्निया यहाँ पर ये काम कर रहा है। यहाँ कई बार आप देखिएगा बच्चों, हम यहाँ जो फोटोग्राफी करते हैं, फोटो सेशन चल रहा है कई बार, तो जब हम फोटो खींचते हैं तो उस फोटो के अंदर कई बार रेड कलर का स्पॉट आई के अंदर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कई बार लाइट का जो, जैसे हम फोटो खींच रहे हैं तो लाइट का एक क्लस्टर ऑफ द लाइट है वो यहाँ पर कम इनटू द कॉर्निया। देन वहां कॉर्निया जब उस लाइट को एक साथ रिफ्लेक्ट करेगा, स्पीड से वो लाइट जाएगी, वहां से जब ज्यादा से ज्यादा एक रिफ्लेक्ट करेगा तो वहां एक रेड स्पॉट बन जाता है। इसीलिए फोटो के साथ में ऐसी यहाँ रेड स्पॉट आती है। तो देखिएगा इस प्रकार से आप महसूस कर सकते हो, प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। ये तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट है वो कौन करता है? वो कॉर्निया करता है। आगे भी होती है लाइट का रिफ्लेक्शन, एक्वस ह्यूमर भी करता है, लेंस भी करता है यहाँ, लेकिन मैक्सिमम लाइट है वो बाहर से ही यहाँ वो निकाल दी जाती है। कुछ
एनिमल्स के अंदर देखिए रात को आंखें कहते हैं, आई कहते हैं, या ब्राइटनेस दिखाई देती है, चमकती है, जैसे काऊ के अंदर, बफेलो के अंदर, कैट के अंदर, या कार्निवर्स जितने भी एनिमल्स होते हैं इसमें जो आई है वो चमकती है बिल्कुल, या ब्राइटनेस दिखाई देती है अंधेरे में, जैसे कोई लाइट डालते हैं तो वो यहाँ में यहाँ चमकती हुई दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर बच्चों यहाँ एक टेपिटम लूसिडम एक लेयर होती है और वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या है रिफ्लेक्ट कर देगी यहाँ पर, जिससे हमें क्या है वो चमकती हुई दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एक कॉर्निया इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देन इट गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द एक्वस ह्यूमर। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर कॉर्निया के अंदर जब ब्लड सप्लाई नहीं है, ए वेस्कुलर पार्ट ऑफ द आई है, तो यहां पर इसको न्यूट्रिशन कौन देता है? तो न्यूट्रिशन आपको पता है कॉर्निया को यहाँ पर कौन देगा? तो ये हमारा कॉर्निया है और यहाँ जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, ये लगातार इसको क्या है न्यूट्रिशन कॉर्निया को यहाँ पर देने का काम कर रहा है। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड टू दी एक्वस ह्यूमर, यहाँ ध्यान रखिए ये यहाँ लिम्बस पार्ट था यहाँ, इसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बना, एक्वस ह्यूमर है वो यहां न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है टू दी कॉर्निया। कॉर्निया हैज ए रिच अमाउंट ऑफ द नर्वस सप्लाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है यहाँ पर, हायर अमाउंट ऑफ द नर्व सप्लाई, यहाँ न्यूरॉन फाइबर्स है बच्चों बहुत होती है, यहाँ न्यूरॉन के फाइबर्स है वो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में न्यूरॉन पाई जाती है। नर्व फाइबर है, हम कह सकते हैं नर्व फाइबर प्रेजेंट होती है, हायर अमाउंट ऑफ द नर्व फाइबर कॉर्निया के अंदर प्रेजेंट है। इट इज वेरी सेंसिटिव टू टच एंड पेन। ये जो नर्व फाइबर है वो किसके प्रति यहाँ पर है, वो सेंसिटिव होते हैं, तो इसके का कह सकते हैं अपन टच और पेन होने का सबसे ज्यादा डर रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जिसी कोई पार्टिकल है आई के अंदर चला जाता है, कोई डस्ट पार्टिकल चला जाता है, तो आप देखिएगा आपके अंदर पेन शुरू हो जाता है। या तो इसका कारण क्या होता है, यहाँ हायर अमाउंट ऑफ द नर्व फाइबर है फाउंड इन द कॉर्निया और दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर द टच और पेन। यहाँ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि कॉर्निया को ऑक्सीजन कहां से मिलती है? तो कॉर्निया ऑक्सीजन डायरेक्ट एनवायरमेंट से ऑक्सीजन यहाँ पर लेता है। यहाँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डायरेक्ट ऑक्सीजन यहाँ पर कॉर्निया है वो उसको प्रोवाइड करवाई जाती है या यहाँ अब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन। देन टीयर कंटिन्यूअसली फ्लो ओवर द कॉर्निया एंड कीप द मॉइस्ट। लगातार लेक्रियाबल ग्लैंड होती है यहाँ पर, हम यहाँ पर बात करें, कल पूछा कहा था आपको कि लेक्रियाबल ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड लगातार क्या होती है, टीयर है वो रिलीज करता रहता है और ये टीयर यहाँ पर आई बॉल को कॉर्निया को यहाँ मॉइस्ट बनाए रखने का काम करता है। तो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ बनती है। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा होगा, आपके नीचे एक यहाँ पर छोटी सी एनिमेशन डायग्राम दिया है। देखो जिसी आई के साथ में कोई टच करते हैं, यहाँ देखिए टच करते हैं तो यहाँ अपने बिल्कुल आई ब्लिंकिंग करती है, आई मूव करती है। या जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर टच करेंगे तो ये सेंसेज चेक किए जा रहे हैं कि क्या आई के अंदर ये सेंसेज है या। तो बिल्कुल ये देखिएगा बहुत ही सुंदर तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। जो आई ब्लिंकिंग और इसके पेन रिसेप्टर को, इसके टच रिसेप्टर को यहाँ चेक किया जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर इसके आगे सेकंड पार्ट ऑफ द आउटर ट्यूनिक, दैट इज जो कॉल्ड स्क्लेरोटिक लेयर और द स्क्लेरा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्क्लेरा और स्क्लेरोटिक लेयर? It is made up of white, hard, opaque, thick, fibrous connective tissue in human, but in frog it is made up of the cartilage. बच्चों यहां पर समझने का प्रयास करें आप, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द या आउटर ट्यूनिक है वो व्हाइट फाइबर से बना हुआ है, हार्ड है, ओपेक है, थिक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से यहां पर फॉर्म है यहाँ। एंड कंपेयर करें अपन फ्रॉग के साथ में तो इट इज मेड बाय द कार्टिलेज। फ्रॉग के अंदर ये स्ट्रक्चर किससे बनी हुई है? कार्टिलेज के साथ बनी हुई है। इट इज द इनर पोर्शन ऑफ द आई बॉल एंड इट इज नॉन वेस्कुलराइज्ड। तो यहां पर ध्यान रखिएगा आई बॉल है ये, इसका ये इनर पोर्शन है और यहां पर अपन कह सकते हैं कि आई बॉल का इनर पोर्शन का मीनिंग यहां पर फ्रंट ऑफ द
अपने आई बॉल देखे दो तो कॉर्निया हो गया यहाँ पर। देन इनर साइड ऑफ द ऑर्बिट, इनर साइड ऑफ द ऑर्बिट है तो वो कौन सा पोर्शन है, ये जो स्केलरा पार्ट है यहाँ। देन नॉन वेस्कुलराइज, इसके अंदर भी कोई ब्लड वेसल्स है, ध्यान रखते हैं नॉन वेस्कुलराइज का मीनिंग है यहाँ ब्लड वेसल्स है, यहाँ ब्लड वेसल्स है वो अब्सेंट होती है। एनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स डज नॉट फाउंड इन दी sclerotic layer or the outer tuning of the eye. This layer is of white color, so it is also called white of eye. तो आई का हम देखते हैं हमारी अंदर देखिए बीच में तो ये ब्लैक रीजन दिखाई दे रहा है और साइड में यहाँ पर व्हाइट रीजन जो दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, इसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरोटिक लेयर कहेंगे यहाँ पर। और ये व्हाइट दिखाई दे रहा है स्क्लेरोटिक, मैंने एक यहाँ एक फॉर्मूला बताया था आपको, एस फॉर सफेद और एस फॉर स्क्लेरोटिक पार्ट। स्क्लेरोटिक पार्ट इट इज ए आउटर पार्ट ऑफ द आई बॉल, आउटर रीजन ऑफ द आई बॉल, आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल। तो ये इस प्रकार से हम बता सकते हैं। ओरिजिन के बेस पे देखें, दिस पार्ट ऑफ आई इज ओरिजिन मेसोडर्मल इन ओरिजिन। बच्चों ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां से ओरिजिन हो रहा है, मेसोडर्मल ओरिजिन हो रहा है। इनर लेयर ऑफ द आईलिड रिमेन स्ट्रेचेज ओवर एंटीरियर पार्ट ऑफ स्केलेरा दैट इज कॉल्ड लिम्बस इन द फॉर्म ऑफ translucent membrane, it is called conjunctiva. The conjunctiva situated outer side of the cornea. ओके बच्चों, यहां तक के बात आपकी समझ में आई। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इट इज मेड अप ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड द थिनेस्ट एपिडर्मिस इज एक्सटेंड अप टू मार्जिन ऑफ कॉर्निया दैट इज कंजक्टिवा इज द थिनेस्ट एपिडर्मिस इन द एनिमल बॉडी। ये क्वेश्चन भी बच्चों फ्रेम किया जा सकता है कि थिनेस्ट एपिडर्मिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थिनेस्ट एपिडर्मिस है बच्चों, हमारे शरीर कंप्लीट बॉडी की बात करें तो थिनेस्ट एपिडर्मिस से कहां होती है, तो आपका आंसर होगा थिनेस्ट एपिडर्मिस फाउंड इन द कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जो पार्ट है वहां पर थिन, सबसे थिन एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। तो इस बात को हम यहां पर समझ गए हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखें। देन बच्चों ठीक है, यहां तक समझ में आया। दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द आई। फर्स्ट पार्ट ऑफ द आई हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आई जिसके अंदर हमने देखा यहाँ कॉर्निया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसिटिव रीजन, बट द सेकंड लेटर पार्ट ऑफ द outer layer known as the sclerotic layer, which is a very very important layer for the protection of the eyeball. It is a thickest layer, it is a thirdest layer which is formed by the fibrous connective tissue, and the cornea or sclerotic layer, in between the cornea and sclerotic layer connect with the corneo junction, cornea sclerotic junction or the limbus outer side of the cornea found a conjunctiva. It is a thinnest layer of the thinnest epidermis of the complete body, whole body, entire body. आगे चले हम। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द eyeball, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। कैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दिस इज ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर। वेस्कुलर स्ट्रक्चर का मीनिंग इट हैव हाई अमाउंट ऑफ द ब्लड वेसल्स, सो कॉल्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर बच्चों देखिएगा ब्लड वेसल्स है वो बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रही है, एक तो बात ये। सेकंड थिंग यहाँ पर इसके अंदर ये पिगमेंटेड लेयर है। ये लेयर क्या है, पिगमेंटेड है, इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट होने के कारण ये आई कलर, ध्यान रखें ये जो लेयर है ये क्या प्रोवाइड कर रही है, आई कलर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट हो सकते हैं यहाँ पर, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, तो आई कलर है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो आई कलर है वो यहाँ इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वेस्कुलर ट्यूनिक है, और इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कोरोइड लेयर। इट इज द मिडल लेयर ऑफ द आई बॉल। मिडल लेयर क्यों कहते हैं, ये आउटर लेयर, ये सेकंड लेयर और ये यहां पर थर्ड लेयर। आउटर लेयर यहां पर स्क्लेरोटिक लेयर और ये यहां पर कोरोइड लेयर और ये लेयर है यहां पर रेटिना।
इसका मीनिंग क्या हो गया, ये मिडिल लेयर हो गई। तो मिडिल लेयर ऑफ द आई बॉल, इट इज ए कलर्ड पार्ट ऑफ द आई बॉल। ये अभी हमने बात की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई बॉल। इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ स्टेटमेंट है, और ये आपके यहाँ समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये एक दो मेन चीज बताइए आपको, पिगमेंटेड लेयर और ब्लड वेसल्स लेयर, जो ये दो वर्ड यहां पर निकल के आए हैं यहाँ। देन मेलेनिन पिगमेंट इज फाउंड इन दिस लेयर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेलेनिन पिगमेंट, आई लुक लाइक ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक इन कलर इन द डिफरेंट पर्सन्स। Then this layer has three parts, or the layer modified into the three parts. First is the choroid layer. Choroid layer meaning the choroid layer is the part of the vascular tunic which lie below the sclerotic layer. It contain abundant pigment cell and blood vessels. Which layer? That is a choroid layer or choroid part of the vascular tunic. Then it nourishes the retina as well as a sclerotic layer. The melanin absorbs stray light ray and convert eyeball into a dark chamber. It prevent reflection and scattering of the light within the eyeball. यहां पर बच्चों रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं, स्कैटरिंग को, लाइट की स्कैटरिंग है उसको भी ये क्या है प्रिवेंट कर रहे हैं। ड्यू टू कैसे कर रहा है, यहां पर जो स्ट्रे लाइट जो आ रही है उस लाइट को ऑब्जर्व करके। एज ए रिजल्ट द इमेज कास्ट ऑन द रेटिना बाय द कॉर्निया एंड लेंस रिमेन शार्प एंड क्लियर। बिल्कुल यहां ध्यान रखें, रेटिना शार्प है और लेंस शार्प है, इस कारण क्या होती है लाइट सीधी की सीधी कहां जाएगी, यहाँ रेटिना पर जाएगी, और शार्प होने के कारण और यहाँ एक स्पष्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक कंडीशन दिखाई गई है बच्चों, एल्बिनोज देखा गया होगा आपने। एल्बिनो पर्सन ऐसे पर्सन होते हैं जिसकी स्किन क्या होती है, यहाँ पर पिंकिश स्किन होती है, कलर नहीं होता है स्किन के अंदर। ऐसे पर्सन जिसमें जो एल्बिनो है उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट आर एब्सेंट इन होल बॉडी, एंटायर बॉडी एज वेल एज स्किन, हेयर एंड आई। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, एल्बिनो कहेंगे। और एल्बिनो पर्सन होंगे वो क्या है, धूप के अंदर बच्चों बहुत लंबे समय तक यहां मूव नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू हायर अमाउंट ऑफ द लाइट है वो बॉडी के अंदर, आई के अंदर एंटर करेगी, तो वहां अब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या है उसके अंदर पिगमेंट नहीं है। पिगमेंट नहीं है तो डिफेक्ट डेवलप हो सकता है, इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये कह रहा है या एल्बिनो लैक मेलानिन इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग आई। ओके, दे ऑफन नीड टू वियर सनग्लास इवन इंडोर, because even moderately bring light is perceived as bright glare due to light scattering। बच्चों ऐसे पर्सन्स के अंदर है वो एक मॉडरेट लाइट के अंदर उसे रहना पड़ता है, इसलिए ऐसे पर्सन्स क्या करेंगे, सनग्लास का यूज करते हैं। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द choroid layer is called ciliary body. It is outer layer। यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा देखिए आपको बताया गया है, एनिमेशन के द्वारा बताया गया है, दैट इज कॉल्ड ciliary body। यहाँ पर बच्चों ये ciliary body है, एंगल बन रहा है ciliary body का, ट्रेबेकुलर मेसोरक एक यहाँ ये एक बच्चों केनाल दिखाई गई है, इस केनाल को हम कहेंगे केनाल ऑफ स्लीम। स्लीम की जो केनाल है और यहाँ फ्लूइड रिलीज कर रही है, ये कॉर्निया पार्ट है, और ये यहाँ आइरिस रीजन है, एंटीरियर चैम्बर है, ये लेंस यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे, ये रीजन को सिलियरी बॉडी कहेंगे। ये जो रीजन है इस रीजन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सिलियरी बॉडी के नाम से यहाँ पर जानते हैं।
और इसके आगे यहाँ पर बच्चों ये क्या लेंस है, और ये जो कैनाल देखिएगा ये कैनाल यहाँ पर है, ये कैनाल, इस कैनाल को हम कहते हैं कैनाल ऑफ स्लीम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैनाल, जो सीलियरी बॉडी और आइरिस के पास में यहाँ पर स्थित होती है, और इसके अंदर यहाँ खुल रही है, एंटीरियर चैम्बर में ये खुल रही है, ओपन हो रही है। तो सीलियरी बॉडी इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्टोडर्मल एम्ब्रियोनिक ectodermal layer, or which is formed by the two type of muscles or found in the ciliary body, two type of muscles। इसकी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, सिलियरी बॉडी की किस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। इट इज द लोअर स्वोलन पोर्शन बिलो लिम्बस, इट हैज सिलियरी प्रोसेस विच प्रोजेक्ट इनटू द आई बॉल। तो इस प्रकार से जो सिलियरी बॉडी है इसके अंदर इस प्रकार के प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोजेक्शंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इस प्रोजेक्शंस को हम कहेंगे सिलियरी प्रोजेक्शंस। ये प्रोजेक्शंस ही ऐसे, इसी के अंदर कैनाल यहाँ ओपन होती है, स्लीम की कैनाल, और इसके द्वारा लगातार रिलीज होता है एक्वस फ्लूइड, ये रिलीज होता है यहाँ पर। It has ciliary muscles. There are two type of muscles, circular muscles और meridional muscles. Circular muscles और meridional, there are two type of muscles found in the ciliary body. Inner end of the meridional is attached to choroid and outer end at the junction of the sclera and cornea. इस प्रकार से सिलियरी बॉडी बच्चों देखिएगा इस प्रकार से एक बड़ी स्ट्रक्चर बनती है। ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये यहाँ इस प्रकार ये कनेक्शन रहती है, और इधर ये कनेक्शन एक है, ये इधर लेंस से कनेक्ट रहती है यहाँ पर। तो ये पार्ट एक है, यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, सिलियरी बॉडी का एक पार्ट कहेंगे, दैट इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी हम यह कह सकते हैं। अब ये कह रहा है कि इनर एंड ऑफ द मेरिडियनल मसल्स अटैच टू द कोरोइड। कोरोइड लेयर है, कोरोइड लेयर कौन सी होगी, ये पार्ट है यहाँ, इसके आगे क्या हो गया, ये कोरोइड लेयर हो गई यहाँ पर। तो इससे कोरोइड लेयर इसके साथ में कनेक्ट है यहाँ पर मसल्स का, और आउटर पार्ट है एंड जंक्शन ऑफ द स्क्लेरा, इसके साथ में यहाँ पर एक जंक्शन भी है, इसे कहेंगे स्क्लेरा। ये जंक्शन है, इस जंक्शन स्क्लेरा से ये यहाँ पर कनेक्ट है, और साथ में कॉर्निया, स्क्लेरा और कॉर्निया यहाँ पर, ये कॉर्निया कह सकते हैं, इसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट है। तो इस टाइप की एक स्ट्रक्चर यहाँ बनती है जो अपने सिलियरी बॉडी की स्ट्रक्चर बता सकते हैं। देन सेकंड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द आइरिस। आइरिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों इस प्रकार से लगातार ये बढ़ती रहती है, और या साइज इसका ये पूरी की पूरी या कवरिंग जो है, ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग ये क्या आइरिस की है, ये कवरिंग क्या है, ये आइरिस की है। ये अब ये आइरिस की कवरिंग है, ये यहाँ इंक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है लगातार अकॉर्डिंग टू लाइट है। बहुत ही सुंदर डायग्राम आपके सामने यहाँ पर रखा गया है, इतना कि किस प्रकार से ये यहाँ ये आइरिस पाई जाती है। एक सामने से अपने फ्रंट से देखे और आप अपने शीशे के अंदर, मिरर के अंदर देखे लाइट की प्रेजेंस में, तो लगातार क्या है, ये कम या ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है आइरिस से। आइरिस के बीच में ये क्या है बच्चों, प्यूपिल है, प्यूपिल का साइज है, इसी के ऊपर आइरिस के साइज पर डिपेंड होता है। जनरली हम इस आइरिस को यहाँ पर मैं बनाऊं, यहाँ देखिए ये बच्चों हमारे अंदर आइरिस है, ये इस प्रकार की आइरिस होती है, और इस आइरिस के अंदर यहाँ पर बीच में क्या होता है, यहाँ पर प्यूपिल होता है। ये बात आपकी समझ में आई। इस आइरिस में यहाँ पर मसल्स पाई जाती है बच्चों, देखिए ये इस प्रकार से मसल्स होती है, ये मसल्स पाई जाती है। ऐसी मसल्स को हम क्या कहेंगे, ये मसल्स है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन है। ऐसी मसल्स को हम कहेंगे रेडियल मसल्स। रेडियल मसल्स के नाम से हम जानते हैं। यहाँ इसकी और डिटेल स्ट्रक्चर हम देखें तो किस टाइप की मसल्स है, इसके अंदर रेडियल मसल्स है। दूसरे टाइप की मसल्स भी है बच्चों यहाँ पर। इस मसल्स को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये जो मसल्स है इस प्रकार की, यहाँ पर दूसरे टाइप की ये मसल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। इस मसल्स को हम कहते हैं यहाँ पर सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल, देयर आर टू टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन द आइरिस। अब इसको सेक्शन लें तो एक अपर आइरिस होगी, एक लोअर आइरिस हो गई। दो टाइप की आइरिस है यहाँ,
और each iris formed by two type of muscles. First is the radial muscles and the second is the circular muscles. What is the function of iris? बीच में देखिएगा ये एक सेंटर पार्ट है, इसको हम कहेंगे प्यूपिल. What is the function of the iris? तो देखिएगा आइरिस क्या करे, इट इज कंट्रोल, इट इज रेगुलेट ऑफ द लाइट, entering of the light from the environment. When the higher amount of the light come into the eye, then iris will be constricted and regulate of the eye for the entering in the eyeball. Which type of muscles? तो helpful for this function, आंसर आएगा रेडियल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स. इन डे टाइम, ध्यान रखिए बच्चों, इन डे टाइम द लाइट, आप देखिएगा हायर अमाउंट ऑफ द लाइट है. या दिन में लाइट ज्यादा रहेगी, लाइट ज्यादा रहती है तो इतनी लाइट अपनी आई के अंदर एंटर नहीं करने देता हमारा आइरिस. एक लिमिटेड आई लाइट ही एंटर करवाएगा. तो इन डे टाइम द रेडियल मसल्स विल बी कंस्ट्रिक्टेड in the daytime, और circular muscles also constrict in the night time. यहां पर देखिए तो रेडियल मसल्स बच्चों यहां पर कंस्ट्रिक्ट होगी. आप देखिए रेडियल मसल्स जैसी कंस्ट्रिक्ट होगी तो यहां क्या होगा, पिपिल का साइज है उसमें चेंजेज आ जाएगा. एंड सर्कुलर मसल्स यहां कंस्ट्रिक्ट होगी तो भी यहां पर पिपिल के साइज में चेंजेज आ जाएगा. यहां तो ये पिपिल साइज है regulated by the radial muscles and regulated by the circular type of muscles. That is two type of muscles found in the iris which are originated from the ectodermal. All muscles are origin from the mesodermal except iris muscles, except ciliary body muscles. Both type of structures have a special muscles which is originate from the ectodermal, embryonic ectodermal. ये बच्चों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इस चीज को हम यहां पर आगे देखें. यहां आइरिस कोरोइड लेयर vascular tunic separate from sclerotic layer just after the cornea inclines toward inner side and form a colored screen. It is called iris. एक कलर्ड स्क्रीन, अपना आई को कलर देने का जो पार्ट है वो कौन सा है, यहां पर आइरिस का है. या मसल्स ऑफ आइरिस आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन वेयर एज द मसल्स ऑफ द बॉडी आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. ये बच्चों यहां से ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर स्टेटमेंट के रूप में इसे पूछ सकते हैं. यहाँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. There is present an aperture in the center of the iris. It is called pupil. The light ray enter in the eyeball through the pupil. Then two type of muscles are related with the iris. First is the radial dilatory muscles. Radial dilatory muscles meaning यहाँ पर dilate करती है. यहाँ पर these are outer unstriated muscles. These are expanded in the iris widthwise and iris become constricted if these muscles contract and diameter of the pupil is increased at that time. तो रेडियल मसल्स बच्चों ध्यान रखिए, मैं आपको फिर इसे समझाने का प्रयास करूं कि हमारे पास में यहाँ ये प्यूपिल है और ये यहाँ पर रेडियल मसल्स है. यहाँ ये रेडियल मसल्स यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट होगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ पेरिफेरी पार्ट में कंस्ट्रिक्ट होगी. पेरिफेरी पार्ट में कंस्ट्रिक्ट होगी तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और ये इस प्रकार की कंडीशन डेवलप हो जाएगी.
ऐसी कंडीशन डेवलप यहाँ पर हो जाती है, पीपल का साइज है यहाँ इंक्रीज हो गया। ये इंक्रीज कब होता है? ये नाइट टाइम में होता है, यहाँ पर नाइट टाइम में होता है। नाइट टाइम में क्यों होता है कि लाइट कम होती है, लाइट कम होती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट वो एंटरिंग करवाने के लिए रेडियल मसल्स विल बी कंस्ट्रिक्टेड एंड द पीपल साइज विल बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू लाइट। तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ द लाइट, तो इस प्रकार से रेडियल डायलेशन करता है, पीपल के साइज में डायलेशन करने में हेल्पफुल है। इट हैपन इन डिम लाइट, इट इज कॉल्ड माइड्रेसिस। ये कब होता है? डिम लाइट के समय ये ऐसी घटनाएं होती है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ सकते हैं आपसे। देन सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स है सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर टाइप ऑफ मसल्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। These are scattered in the inner part of the iris and due to the contraction in bright daylight or high flash of light of these muscles in highlight, iris expand breadth wise and the diameter of the pupil is डिक्रीज। बच्चों ये एक दूसरी टाइप की मसल्स है जिसे हम कहेंगे सर्कुलर मसल्स है। ये हमारे पास में प्यूपिल है और ये जो मसल्स है इस मसल्स को हम कहेंगे सर्कुलर मसल्स है। ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यहां पर ये प्यूपिल साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कब होता है? जब आपके पास में लाइट है वो ब्राइट हो, अत्यधिक लाइट हो, तब यहाँ पर प्यूपिल का साइज कंस्ट्रिक्टेड रहता है। तो ये काम करता है कौन? सर्कुलर मसल्स है, इसका फंक्शन है यहाँ पर, ये यहाँ पर हेल्पफुल है इस काम में। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहेंगे मियोसिस कहेंगे यहाँ। तो ये फिर यहाँ पर साइज इंक्रीजिंग साइज ऑर्डर यहाँ पर दिखाया रहा है। जैसे लाइट आती है तो यहाँ पर क्या कर रहा है? ये देखो डिक्रीजिंग बता रहा है, ये इंक्रीजिंग बता रहा है, ये डिक्रीजिंग बताता है। तो प्रेजेंस ऑफ द लाइट और एब्सेंस ऑफ द लाइट द प्यूपिल साइज है विल बी चेंजेज। तो हम कह सकते हैं ये मसल्स है, ये प्यूपिल साइज को है वो कंट्रोल कर रही है और लाइट को यहाँ पर रेगुलेट करने का फंक्शन कर रही है। तो इस प्रकार से आप इस घटना को, इस इवेंट को हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड मियोसिस। आइरिस कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बाय द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल, दैट इज आइरिस एक्ट एज ए डायफ्राम ऑफ द कैमरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा जाता है। ये आपके फिजिक्स के अंदर भी ये स्टेटमेंट आता है यहाँ पर। एक्सेप्ट मसल्स ऑफ आइरिस एंड सिलियरी बॉडी, ऑल वेस्कुलर ट्यूनिक ऑफ द आई बॉल इज मेसोडर्मल इन द ओरिजिन। ध्यान रखें यहाँ। तो ये एक और यहाँ पर डिफरेंट एक डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट के अंदर आप देखिएगा जो ये प्यूपिल साइज है, ब्राइट लाइट में ये छोटा साइज है, जबकि यहाँ नॉर्मल लाइट है तो नॉर्मल ये रहेगा, और यहाँ पर डिम लाइट है तो प्यूपिल का साइज है वो इंक्रीज हो गया अकॉर्डिंग टू रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है ये। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट एक बहुत ही सुंदर डायग्राम के द्वारा प्यूपिल साइज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसको भी कंट्रोल कौन करता है? तो एक नर्वस सिस्टम है जो इसको कंट्रोल करता है। द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कंस्ट्रिक्ट and the sympathetic fibers are dilate of the pupil। सिंपैथेटिक फाइबर क्यों डायलेट करता है? बड़ा करता है, यहाँ प्यूपिल को डायलेट करता है यहाँ पर कौन? ये। और ये क्या करता है? यहाँ पर प्यूपिल को छोटा करता है, ये डायलेट कर रहा है। क्यों? यहाँ क्या है? ये एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रहा है, और ये क्या रिलीज कर रहा है बच्चों? नर्वस सिस्टम में आपको बताया था एपिनेफ्रीन है, नर्वस सिस्टम हमने किया था, ये रिलीज करके इसको डायलेट कर देगा। तो इस प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक यहाँ पर हमने यहाँ पूरा किया, कंप्लीट हुआ है। और आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्यूनिक, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द ट्यूनिक एंड द मिडल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्यूनिक ऑफ द आई बॉल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट टाइप ऑफ टॉपिक, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क इन द examination by the examiner, that can be framed by the examiner. So it is a important topic. I hope you have a crystal clear knowledge about the topic and you are clearly understand. Okay, thank you so much.